નમસ્કાર, હું છું સિરી અને આપ જોઈ રહ્યા છો યુગ અભિયાન ટાઈમ્સ। શ્રીરામ જન્મભૂમિ ટ્રસ્ટના અધ્યક્ષ શ્રી 108 મહંત નૃત્ય ગોપાલ દાસજી મહારાજના ઉત્તરાધિકારી મહંત શ્રી કમલ નયન દાસજી મહારાજ હસ્તે VNF ગરબા મહોત્સવ ભૂમિ પૂજન કરવામાં આવ્યું હતું। VNF ના ગરબા જે નવલખી ગ્રાઉન્ડ ખાતે થનાર છે તેનું ભૂમિ પૂજન કરીને દર વર્ષની જેમ વડોદરાની સાંસ્કૃતિક ઓળખ જે ગરબા છેલ્લા 8 વર્ષોથી સાચવી રહ્યા છે તેના આયોજકોને આશીર્વાદ આપી ગરબાની તૈયારી માટેની શરૂઆત કરાવશે। VNF પરા પૂર્વથી વડોદરા શહેરમાં આદિશક્તિમાં જગદંબાનો આ રાજ્ય પર્વ નવરાત્રી એ ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવે છે। VNF એ વિશ્વ ફલક ઉપર પોતાની એક આગવી ઓળખ ઊભી કરી છે એવા શ્રી મહંત કમલનયના દાસજી મહારાજના આગમનથી VNF ધન્યતા અનુભવી હતી, જેમાં ખાસ ઉપસ્થિતિમાં વડોદરા શહેર સાંસદ રંજનબેન ભટ્ટ તથા ધારાસભ્ય યોગેશ પટેલ તથા ધારાસભ્ય કેયુર રોકડિયા તથા ધારાસભ્ય ચૈતન્ય દેસાઈ, પૂર્વ મેયર નિલેશ રાઠોડ તથા VNF ગરબા મહોત્સવના પ્રમુખ નિયક પટેલ તથા દિનેશ યાદવ અન્ય મહાનુભાવો ઉપસ્થિત ગરબા મહોત્સવ ભૂમિ પૂજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો હાજરી આપી હતી। આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી જ્યારે વડોદરા આવી રહ્યા હોય ત્યારે ચોક્કસ વડોદરાવાસીનો મોદી સાહેબ માટેનો એક અનેરો પ્રેમ છે, અનેરો ઉત્સાહ છે અને કાર્યકર્તા પણ એટલા જ ઉત્સાહથી મોદી સાહેબનું સ્વાગત કરવાના છે। અને જ્યારે નવા પાર્લામેન્ટની ભેટ દેશને આપી હોય અને નવા પાર્લામેન્ટની ભેટ આપ્યા પછીનું પહેલું જ નારી શક્તિ વંદન વિધેયક પાસ થતું હોય અને ત્યાર પછીનો કાર્યક્રમ વડોદરા ખાતે થવા જઈ રહ્યો હોય, ચોક્કસ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓ હશે, ખૂબ મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓ હશે। ગઈકાલથી જ દરેક વોર્ડ વાઇઝ મિટિંગ પણ શરૂ થઈ ગઈ છે, એટલે આયોજન પણ શરૂ થઈ ગયું છે અને ખૂબ સારી સંખ્યામાં મોદી સાહેબનું સ્વાગત કરવા માટે વડોદરાની મહિલાઓ, જિલ્લાની મહિલાઓ, આણંદની મહિલાઓ, ખેડાની મહિલાઓ, આમ તમામ લોકો આ વડોદરા ખાતે આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સન્માન અને સ્વાગત કરવા માટે તૈયાર છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા એ હંમેશા સજ્જ હોય છે, કેમ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા પાસે 2 કલાક પહેલાં પણ કાર્યક્રમ આવતો હોય છે અને કાર્યકર્તા તૈયાર થઈને બહાર નીકળી જતો હોય છે। સંસ્કાર અને અનુભવથી તૈયાર થયેલો ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા છે। આપણી પાસે 4 દિવસ છે, આમ તો ગઈકાલથી કાર્યકર્તાઓએ મહિલા મોરચાએ તૈયારી કરી દીધી છે, એટલે દરેક વોર્ડમાં જઈને વડોદરા શહેર અને જિલ્લો પણ એ જ રીતના આગળ વધી રહ્યો છે કે ગઈકાલથી મિટિંગોનો દોર ચાલુ છે। દરેક વોર્ડમાંથી કેટલી બહેનોની સંખ્યા લાવી શકાય, ક્યાંથી કેવી રીતે લાવી શકાય, આ બધી જ તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે। આવનારા દિવસોમાં ફરી હું તમને કહીશ કે કેવા રોડમેપ સાથેનો આ કાર્યક્રમ તૈયાર થયો છે, પણ આપણે બધા વડોદરા શહેર અને મારું મીડિયા આપણે બધા જ ભેગા થઈને મોદી સાહેબને આપણે સ્વાગત કરીએ। પહેલાં વડોદરા આવશે કે બોડેલી જશે? ના, પહેલાં બોડેલી જશે, પછી વડોદરા આવશે। उपासना में बहुत अच्छा है, ब्रह्म दृष्टि रखनी चाहिए, लेकिन ये वितंडावाद खड़ा करना हमारे विचार से बहुत उत्तम नहीं है। जहाँ स्वामी नारायण जी महाराज का जन्म हुआ, मेरा भी जन्म वहीं हुआ है, मैं जानता हूँ, उस परिवार को जानता हूँ। मेरे विचार से ये वितंडा खड़ा करना बहुत उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। ठीक है, स्वामी नारायण को भगवान करके मानते हैं, उपासना में सबको ब्रह्म दृष्टि रख के मानना चाहिए, लेकिन इसमें विवाद भी खड़ा करना उचित नहीं, अच्छा नहीं है। अपमान हो रहा है सब भक्तों का। कहा तो रहे हैं भाई, वही मैं बता रहा हूँ, ऐसा करना उचित नहीं है, वितंडा खड़ा करना उचित नहीं। हमने बताया कि हम उस पूरे परिवार को जानते हैं जहाँ स्वामी नारायण जी का जन्म हुआ, मेरा भी जन्म उसी क्षेत्र में हुआ है, मुझे सब कुछ पता है। कनाडा के साथ भी खालिस्तानियों के चलते संबंध बिगड़ रहे हैं, वो भी अलग मांग कर रहे हैं। वो कुछ लोग स्वार्थ बस ऐसा कर रहे हैं, वो गुरु तेग बहादुर जी को भूल गए, गुरु गोविंद सिंह जी के बात को भूल गए, उनके बच्चों के बलिदान को भूल गए, किस किस तरह से बलिदान हुआ, कैसे क्या हुआ देश के लिए, राष्ट्र के लिए, जिस प्रकार से हिंदुत्व के लिए, धर्म के लिए। सब तो हिंदू, सिख समाज कोई अलग हिंदू से थोड़ी है, वो भी तो हिंदू ही है।
सबसे बड़ी बात है, ये सारा वितंडा बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। समय आ चुका है। देखिए, मैं कह रहा हूँ, जिस जनसंख्या के विषमता के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था, वो विषमता आज भी बढ़ती चली जा रही है। और ऐसे बढ़ती गई तो क्या हम अपने राम जन्मभूमि की, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि भी निर्णायक स्थिति में पहुंच गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर के संबंध में आप लोगों ने सुना कितना प्रधानमंत्री ने बढ़ाव किया, कितना बढ़िया बना दिया, और ज्ञान वापी भी मिलने वाला है। लेकिन इस सबसे हमारी पूर्णता नहीं हो रही है। हमारी पूर्णता तो राष्ट्र से है। राष्ट्र सबसे बड़ा मंदिर है। राष्ट्र है तो हम हैं, हमारी अस्मिता है, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, पूजा पाठ है, हमारी इज्जत है, सब कुछ है। राष्ट्र नहीं तो कुछ नहीं है। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा हूँ। हिंदू राष्ट्र, मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूँ। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के विरोध में, हिंदुओं के विरोध में संविधान में एक धारा लेकर के आए, जिस धारा का नाम आप सब लोग जानते हैं, धारा 30 जिसे कहते हैं। धारा 30A। उस समय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जीवित थे। उन्होंने कहा मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं पार्टी से भी इस्तीफा दे दूंगा। उनके चलते प्रधानमंत्री को घुटनों टेकना पड़ा, धारा नहीं आ पाई। लेकिन दुर्भाग्य था, वो बेचारे बहुत जल्दी चले गए, और उनके चले जाने के बाद प्रधानमंत्री जी ये धारा हिंदुओं के विरोध में, हिंदुओं नहीं बल्कि राष्ट्र के विरोध में धारा लेकर के आए। और ये धारा राष्ट्र के विरोध में है। ये जब तक नहीं जाएगा तब तक हिंदू राष्ट्र कह देना, इससे काम नहीं चलेगा। हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता, क्योंकि जब यह धारा जाएगी तभी समान संहिता आएगी। ये धारा जाएगी तभी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा। जब तक ये धारा नहीं जाएगी तब तक धारा 30 का पहला वाक्य है, कुरान और बाइबिल पढ़ करके व्यक्ति IAS की परीक्षा दे सकता है। अगर आप अपने विद्यालयों में गीता रामायण पढ़ाएंगे तो आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। मंदिर विधेयक कानून धारा 30 में आया। मंदिर विधेयक कानून, मंदिर विधेयक, हिंदुओं ने तो बेचारे सीधे साधे लोगों ने समझा मंदिर के लिए ये सब कार्य हो रहा है, मंदिर की सुरक्षा होगी। लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री ने कानून बनाया, हिंदुओं के मठ मंदिरों में रिसीवर होगा। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ, पूर्वांचल के गरीबों के लिए, वनवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए कोई शिक्षण संस्थान की व्यवस्था नहीं की। अगर किसी के पास कोई आंकड़ा हो, कोई प्रमाण हो, बतावे। ये सारी व्यवस्था ईसाई मिशनरियों को दे दिया। आप कहेंगे ईसाई मिशनरियाँ पेट्रोल डॉलर के बल पर, विदेशी पैसे के बल पर। मैं कह रहा हूँ पेट्रोल डॉलर नहीं, विदेशी पैसा नहीं, हमारे मठ मंदिरों के पैसों के बल पर NGO के माध्यम से हमारे भाइयों को ईसाई बनाना शुरू किया। आज मिजोरम पूर्णतः ईसाई है, नागालैंड पूर्णतः ईसाई है, अरुणाचल में 80% ईसाई है, और मणिपुर में जो कुछ हुआ अभी आप लोगों ने देखा ही। इसका क्या कारण है, किसने आग लगाया, ये भी आप सब लोग जानते हैं। ये आग लगाया हुआ जवाहरलाल का है, जवाहरलाल ने आग लगाया। ये सारी बात हुई। तो मठ धारा 30A में आया कि हिंदुओं के मठ मंदिर में रिसीवर होगा। वो रिसीवर का पैसा सरकारी कोष में दिया जाएगा। वो रिसीवर का पैसा, मठ मंदिरों का पैसा 60% ईसाई मिशनरियों को दिया जाएगा। शेष बचा हुआ 40% पैसा मदरसों और मौलवियों को दिया जाएगा। ये स्थिति है हमारे यहाँ मठ मंदिरों की। तो जब तक ये धाराएं हैं तब तक हम राष्ट्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं? जनसंख्या की विषमता बढ़ती चली जाएगी। समय आ चुका है, इसकी पूरी तैयारी भी हो चुकी है। आप लोग चाहेंगे तो ये धारा 30 जल्दी आएगा, समान संहिता लागू होगी और जल्दी से जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा। तमाम सारी बातें हैं। देखिए, आप लोग जानते हैं इन महापुरुषों ने बलिदान दिया देश के लिए, सिर कटाया, कुर्बानी दी। इतने कृतज्ञ तुम लोग थे कि सबको भूल गए और याद रह गया हिजड़ों को। याद रह गया हिजड़ों को, तेदी हमें कुर्बानी बिना खटक बिना ढाल। उन महापुरुषों को भूल गए। आप राम जी को भूल गए, आप गुरु गोविंद सिंह जी को भूल गए, महाराणा प्रताप जी को भूल गए, शिवाजी को भूल गए, सबको भूल गए। और आज हमारे बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं मुगलों का इतिहास, अय्यासों का इतिहास पढ़ रहे हैं। अकबर हमारे लिए महान हो गया,
आज भी हमारे बच्चे मदर टेरेसा को पढ़ रहे हैं। जिस मदर टेरेसा ने सबसे ज़्यादा ईसाई बनाया है देश में, उसे राष्ट्रीय सम्मान के साथ में विभूषित किया गया। राष्ट्र के साथ इस प्रकार से अन्याय किया गया है। 76 में देखिए प्रधानमंत्री सेकुलर शब्द, हिंदुओं के लिए सेकुलर शब्द, सेकुलर સનાતન ધર્મ અને હિન્દુત્વના માધ્યમથી એ કરવા માટે જ્યારે ગુજરાતના પ્રવાસે હોય અને એના ભાગરૂપે આજે વડોદરાના મહેમાન બન્યા છે અને એમના શુભ હસ્તે આજરોજ ક્રીડાઈ વડોદરા નવરાત્રિ ફેસ્ટિવલના ગરબા ગ્રાઉન્ડનું ભૂમિપૂજન રાખવામાં આવ્યું છે અને આજે આ ભૂમિપૂજનના દિવસથી ગરબાની સંપૂર્ણ તૈયારીઓની શરૂઆત કરવામાં આવશે અને દર વખતની જેમ ક્રીડાઈ વડોદરા નવરાત્રિ ફેસ્ટિવલના આગવા આયોજન માટે સમગ્ર વિશ્વની ફલક ઉપર જે રીતે એક ખ્યાતિ પ્રાપ્ત થઈ છે એ રીતે આ વખતે દરેક વખતે કંઈક નવી વસ્તુ અને નવી વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવે છે. એ જ રીતે આ વખતે પણ ભવ્યાતિ ભવ્ય આયોજન કરવાની તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે.